students, today we will discuss osmosis and osmotic pressure. Last colligative property, osmosis and osmotic pressure. Osmotic pressure is denoted by pi. Okay. So first we will define few terms before understanding what is osmotic pressure. So first is semi-permeable membrane. Now from its name we can say it is a membrane which allow the passage of a particular type of molecules excluding other. So semi-permeable membrane is a membrane which allows the passage of one kind of molecules okay. Now let us take two example. If we place a dry grapes, we have dry grapes are placed in a water, what we will observe, if it is placed for a very long time, it will swell. Okay, so it will swell, it means the water present in the container now enter into the grapes and it will swell, and so the size of grapes will be larger than original one. Okay, so when we keep dry grapes into fresh water, it will swell. Okay, instead of this, if we do another experiment in which we will take a brine, that is concentrated solution of salt. So we will take salt solution, and in this salt solution we will keep fresh grapes. Okay, after a long time, if we observe the same system, then the size of grapes will found smaller than the initial. It means it will shrink. If you see, in both the cases, the wall of grape allow the passage of water. In first case, water entering inside the grape, so it is allowed by wall of cell. Okay, similarly here, when fresh grapes are placed in saline solution, the water comes out. So water comes out through cell wall. Okay, so we can say commonly blood cells, wall of fruit cell, fruit and plant cell, okay, similarly bladder of pig's bladder, or man-made like cellophane membrane or cellulose paper. These are the different compounds which allow the passage of water molecules excluding other. These all are known as semi-permeable membrane. Okay, because they allow the passage of solvent molecule only, that is water molecules. Now why it happened? Because if we see microscopically, then in their construction there are pore sites. Okay, in these pore sites
in these pore sites only water molecule can move through it. Okay. So water molecules are smaller in size, so they can pass through such a pore site easily. Okay, from any of the end. Okay, here to here or here to there. So solvent molecule, that is water molecule, can pass, but simultaneously solute molecules cannot pass. Why it happened? Because solute molecules, suppose we take sodium chloride, and sodium ion is immediately surrounded by large number of water molecules when it undergoes solvation. Okay, so compared to solvent molecule, the solute molecules are quite big, and bigger molecules cannot pass through these semi-permeable membrane. Okay, and therefore they are termed as semi-permeable membrane. Now these membrane are of two types. They may be natural or may be artificial. Okay, so natural semi-permeable membrane are, as we discussed, Peake's bladder, wall of kidney, another is skin of animals and plants. Okay, so these are natural semi-permeable membrane. Now artificial, that is synthetic semi-permeable membrane are cellophane paper, parchment paper, another is cupric ferrocyanide, that is Cu2FeCN6. These all are synthetic semi-permeable membrane. Best of all is Cu2FeCN6. Okay, so these are semi-permeable membrane. So when we separate two liquid, then according to natural law, only solvent molecule pass through it. Okay, so let us take an example. We have a beaker which is separated into two parts by keeping a semi-permeable membrane. So I will show semi-permeable membrane by dash lines. Okay, so it is semi-permeable membrane. Now at one end we will keep pure water. Okay, at one side we will take pure water, and in another side we will take a solution. Say we added some glucose into water. Okay, so we can say it is solution which is made of glucose and H2O. Okay, H2O is a solvent, glucose is a solute. Okay, so through semi-permeable membrane, glucose molecule cannot pass, but water molecule pass, whether it move from side A to side B, side 1 to side 2, or side 2 to side 1. So if we observe this system for a very long time, the result will appear like this. Say initially we are taking volume of both the side of liquid equal. तो ये हमने देखा कि जब उसको हम ऐसे ही रखेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, तो जो सॉल्वेंट साइड है वहाँ पे वाटर है, वो हमें इनिशियल वॉल्यूम से कम मिल रहा है, और जो सॉल्यूशन साइड है उसमें सॉल्वेंट जो हाइट है लिक्विड का वो इंक्रीज हो गया. ओके, तो पहले वो यहाँ पे था, अब वो इंक्रीज हो गया. ओके, ये जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ओके, तो क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लो है वो नेट फ्लो कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम साइड
1 to side 2. Okay, so the net flow of H2O take place from solvent side to the solution side. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, पहले तो हमने इक्वल वॉल्यूम ले लिए, इक्वल वॉल्यूम हमने दोनों के लिए ले लिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि हम 1 लीटर ले लेंगे, तो यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे 100% सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो 100% नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब सॉल्वेंट साइड पे मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। अब नेचुरल फ्लो है कि मोर टू लेस। ओके, जैसे हीट कंडक्ट होता है फ्रॉम द बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू द body having lower temperature till an equilibrium is established between them. Okay, there should be indirect contact. So similarly, we separated solvent and solution by a semi-permeable membrane. Okay, so both are in contact with each other. So naturally, water molecules move from their higher to lower concentration till an equilibrium is established. Okay, थोड़े बहुत सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में भी जा सकते हैं क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो नेट फ्लो हम क्या बोल सकते हैं? नेट फ्लो हो रहा है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। ओके, चलिए एक और केस ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ बीकर which is divided into two parts by keeping सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए अब दोनों तरफ हम 1 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन ले रहे हैं। 1 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन इज टेकन। इसको हम बोलेंगे साइड 1, इसको बोलेंगे हम साइड 2। तो जो साइड 1 है वो कंटेन करता है से 6 ग्राम यूरिया इन 1 liter of water, 1 liter of solution, sorry, and here there are 24 grams of urea in 1 liter of solution। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम C1 बोल दें और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को C2 बोल दें, सो C1 मोलर इज लेस देन C2 मोलर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो लेस है। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट लेस है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉरी, सॉल्यूट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू पास नहीं हो सकते फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1, सो ये तो अलाउड है नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउड द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। तो अगर आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कम है इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम C1 molar solution to C2 molar solution. Up to what extent? Till an equilibrium is established. Okay, so we can conclude that when a pure solvent is separated by a semi-permeable membrane, I will write the same as SPM, by semi-permeable membrane, the solvent molecule separated by a semi-permeable membrane from solution, then
solvent molecule flow from solvent to solution side through semi-permeable membrane. This phenomena is known as osmosis. Okay, understood the meaning of osmosis. So osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules. Similarly, we can say when two solution with different concentration are separated by semi-permeable membrane, then solvent molecules passed through semi-permeable membrane from the solution with lower concentration to the solution with higher concentration. So concentration in term of amount of solute per unit volume. ओके मतलब जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे H2O मॉलिक्यूल ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे H2O मॉलिक्यूल्स कम है. तो ऑलवेज ये जो फिनोमिना है उसमें स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सो वी कैन कंक्लूड osmosis as the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from their higher concentration that is more number to the lower concentration that is their less number. Okay, so this phenomena is known as osmosis, the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from their higher concentration to the lower concentration is known as osmosis. Okay. Now let us understand what is osmotic pressure. तो osmotic pressure क्या है वो समझ लेते हैं हम. उसके लिए हम एक सिंपल सा ऑस्मोमीटर डिजाइन करते हैं. तो चलिए पहले तो हम एक ऑस्मोमीटर बनाने के लिए विल टेक अ funnel with wide mouth. So we have a funnel, glass funnel with wide mouth. Okay, now its wide portion is now covered by semi-permeable membrane. तो उसको हम अच्छे से बंद कर देते हैं. We will keep very tight this side. Okay. फिर हम उसको इन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो उसको हम रोटेट कर देंगे तो हमें कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन मिल जाएगी. We have a funnel whose wider part, which is sealed by
इसको भी हमने बंद कर दिया बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या करेंगे, उसके अंदर हम कोई सॉल्यूशन फिल कर देंगे। तो मान लीजिए कि हमने उसके अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन फिल किया। ओके, सो से दिस हाइट इज मार्क एज ए 0, उसको हम मार्क कर देंगे एज ए 0। फनल इज फिक्स्ड इन अ स्टैंड, उसको हम स्टैंड में फिक्स कर देंगे। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसको हम लेंगे some amount of pure water such a way that the semi permeable membrane will comes in contact with water। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे यहाँ तक ये लेवल तक उसमें हम सॉल्वेंट फिल अप कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन ये है कि इनसाइड द funnel there is a glucose solution in the beaker. We are taking pure water. Okay, so in unit volume of pure water there are only H2 molecules, लेकिन जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसके यूनिट वॉल्यूम में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्योर वाटर में ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे सॉल्यूशन में लेस H2 मॉलिक्यूल्स है इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो अब स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड टिल एन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। सो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फ्लो जब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर हो रहा है, H2 molecules entering through in the solution through semi-permeable membrane, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ हाइट अचीव करेंगे। से हाइट अचीव्ड इज h। ओके, सो यूजिंग a relation pi is equal to rho gh, we can able to measure osmotic pressure। Okay, so rho is the density of solution, h is height achieved by liquid, and g is universal constant, we know that। So when we take height in term of mm then ultimately the value of pi will be in term of mm, and further we can convert mm into atmospheric value by dividing 760। ओके, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी तो चलिए उसको समझते हैं हम। जैसे ये हाइट हमें अगेन 0 तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें जो कॉलम ऑफ लिक्विड है जो उसने कुछ हाइट अचीव किया है उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम पिस्टन लाइक सिस्टम रख देते हैं और हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, उतना फोर्स लगाएंगे ताकि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो वापस मूव होंगे फोर्सिबली। ओके, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अब लिक्विड तो नॉन कॉम्प्रेसिबल है ना, तो क्या करेंगे वो धीरे धीरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड मूव होंगे, मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियसली आर्टिफिशियली जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेचुरल फ्लो क्या था, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, लेकिन अभी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो कहाँ पे जा रहे हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। ओके, तो हम कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ताकि ये जो हाइट है वो वापस कहाँ तक मिल जाए हमें, वो 0 लेवल तक मिल जाए। ओके, सो
जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो हमने लिक्विड कॉलम के ऊपर लगाया है ताकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका पैसेज स्टॉप हो जाए फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो किसके इक्विलिब्रियम में होगा? सो द एक्सटर्नल फोर्स पर गिवन एरिया will be equal to osmotic pressure। ओके, अब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। सो द P एक्सटर्नल बिकम्स इक्वल टू पाई। ओके, तो हम डिफाइन करते हैं जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को, चलिए उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं। सो द एक्सटर्नल hydrostatic pressure that must be applied at solution side to prevent the spontaneous flow of solvent molecule from solvent to solution side through semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। Okay, so osmotic pressure is actually the force exerted by solvent molecule when they pass through semi-permeable membrane। मतलब अगर हम इसको semi-permeable membrane समझ लेते हैं तो जब solvent molecules पास होते हैं तो they also collide with the frame structure। okay, तो जब वो कोलाइड होते हैं तब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन द गिवन एरिया। से दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो जो कोई भी फोर्स लगाएंगे वो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पास हो रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उनसे जो फोर्स क्रिएट होता है वो मेजर करें। तो हमने क्या किया कि पहले तो हमने ऑस्मोसिस फिनोमिना होने दिया और वो जो हाइट अचीव्ड हुआ था उसको वापस जीरो लेवल तक ले जाने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ताकि वो वापस जीरो तक आ सके। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया एट सॉल्यूशन साइड उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that must be applied at solution side to prevent the spontaneous flow of solvent molecules from solvent to solution side through a semi-permeable membrane is known as osmotic pressure। okay, now osmotic pressure pi is colligative property। Now how to prove it that pi is colligative property? For that we will prepare an ideal and dilute solution। When we prepare an ideal and dilute solution it will obey Raoult's law। okay, so it will obey Raoult's law। देखो अभी तक हमने जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, RLVP स्टडी किया है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टडी किया है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी किया है, उनके सभी के फॉर्मूला में जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमने N2 को देखा है। ओके, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट है वो उनकी फॉर्मूला में है। ओके, तो वैसे ही पाई का जो कोई भी फॉर्मूला होगा उसकी राइट हैंड साइड में भी मोल ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए।
तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सो वॉन्टॉफ एंड फेफर स्टडीड एन आइडियल एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन and they observed that the behavior of solute molecules in their dilute solution is exactly similar to the behavior of ideal gas molecule kept in enclosed container. मतलब हमारे जो आइडियल सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। तो जो भी आइडियल गैस के लिए हमने इक्वेशंस पढ़े हैं वो सभी इक्वेशंस हम सीधा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि वांट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। चलिए, हमें बॉयल्स लॉ पता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P inversely proportional to V if temperature and N both are constant. In other words, at constant temperature, the pressure of fixed quantity of gas is inversely proportional to its volume. तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बताएं तो हो जाएगा पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V if T and N both are constant. ओके, चलिए समझ लेते हैं उसको। सो उसके लिए हम 3 एक्सपेरिमेंट्स ले रहे हैं। In these 3 experiments, we will separate pure water from solution. Say this side is side A, this side is side B. Okay, so we will take such a 3 different conditions. Okay. अब हम क्या कर रहे हैं कि ये 3 कंडीशंस हैं सॉरी, ये जो 3 कंडीशंस हैं उसमें जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन है, उसमें हम ले रहे हैं 500 ml 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं कि हमारे पास है 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम यूरिया। ऐसे ले लेते हैं हम क्योंकि हमें डाइलेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जो सेकेंड केस है उसमें हम ले रहे हैं 750 ml ऑफ सॉल्यूशन containing say 24 ग्राम यूरिया, और नहीं, हम उसमें भी 6 ग्राम यूरिया ही रखेंगे कि हमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रखना है, 6 ग्राम यूरिया। एंड इन थर्ड केस वी विल टेक 1 liter, that is 1000 ml solution which contains 6 ग्राम यूरिया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मोलर है, इसकी C2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी C3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, सो C1 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C3। अब मान लीजिए कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं इन डिफरेंट केसेस, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं एग्जैक्टली एट 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे अगर हम ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो केस 1 है उसमें हमें ऑस्मोसिस फिनोमेना ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू केस 2 एंड केस 3 सबसे कम है। तो जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है वाटर का which take place from solvent to solution side, वो हम मैक्सिमम देखेंगे इन केस 1, उससे थोड़ा कम हमें मिलेगा इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट।
उसमें ये जो पैसेज जो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो कम मिलेगा। ओके, और जो थर्ड केस है उसमें तो वो लिस्ट मिल रहा है। ओके, सो वी कैन से द osmotic pressure will be highest in case 1 and it will be least in case 3। ओके, तो अगर हम पाई 1 को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से V1 से तो V1 कम से कम है। ओके, और V3 सबसे ज्यादा है। ओके, सो वी कैन से पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, so when volume of different solution containing equal amount of solute is separated by semi-permeable membrane from solvent, then in case of solution with least volume, the osmotic pressure is found maximum. So we can say pi इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसमें वॉल्यूम सबसे कम है उसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट मिलता है। चलिए उसको हम बोल देते हैं रिजल्ट 1। ओके, चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज गैल्यूसेक वन-हाफ लॉ। चलिए गैल्यूसेक लॉ के मुताबिक क्या है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T if and V both are kept constant. So in other words, at constant volume, the pressure of fixed quantity of gas is directly proportional to absolute temperature. तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा if n and V both are constant। उसके लिए हम अगेन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 3। इन दिस 3 एक्सपेरिमेंट वी विल टेक वॉल्यूम V1 is equal to V2 is equal to V3 say is equal to 1 liter of solution। In every solution we will take say 6 gram urea in case 1, in case 2 and in case 3। Okay, we will take 6 gram urea. So we satisfied the conditions, it is mole is constant, volume is constant. Now we will do first experiment say at 20 degrees Celsius, second experiment say at 27 degrees Celsius, and third experiment say at 300 degrees Celsius, that is 293 Kelvin, 300 Kelvin and 303 Kelvin। तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगी। अब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी तो जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू जब वो पास होंगे तब वो ग्रेटर फोर्स से कलाइड होंगे विथ सेल द पोर साइट वॉल, तो वो ज़्यादा फोर्स से एंटर हो रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ओके, सो पर यूनिट एरिया जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो भी इंक्रीज होता है एंड देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन with higher temperature is found more than solution having lower temperature. Okay, if they contain same number of solute molecules. Okay, so pi is directly proportional to T. Another law जो हमने पढ़ा है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ में हमने ये पढ़ा था एवोगैड्रो वन-हाफ लॉ हम ले लेते हैं। तो हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि V proportional to N if P and T are constant. So under the identical condition of pressure and temperature in equal volume of different gases, the number of gaseous molecules are always equal.
ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड ले ले रहे हैं. से वी विल टेक 60 ग्राम यूरिया in 1 liter of water, 1 liter of solution, and 180 gram of glucose in 1 liter of solutions. Both are set exactly at say 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, तो ये दोनों के लिए कंडीशन क्या हो गई कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो हो जाता है इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. ओके, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मिल रहा है. तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू n if volume and temperature are kept constant. Okay, so under identical condition of temperature and volume, the pressure of fixed quantity of gas is equal to the number of particles. Okay, तो वैसे ही अगर हम ये दोनों सॉल्यूशन ले लेंगे तो दोनों सॉल्यूशन में जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा से π1 and π2, then they will be equal. Okay, तो हम बोल सकते हैं कि under identical condition of volume and temperature, the osmotic pressure of two different solutions are directly proportional to mole of solute taken. So π1 by π2 is equal to n1 by n2. So pi directly proportional to n. Okay, अगर हम सभी फॉर्मूले देख लें दोबारा तो हमें मिल रहा है पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. तो अगर हम मर्ज करें तो हमें मिल जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई वी. तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हम सीधा गैस कांस्टेंट आर लिख सकते हैं. सो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी. इट इज formula to calculate osmotic pressure of dilute solution. Okay, now n represent mole of solute particles और हमने अभी तक mole of solute particles को डिनोट किया था n2 से. ओके, सो पाई इज इक्वल टू n2 RT बाई V. अब V को हम रिप्रेजेंट करेंगे in term of liter. तो ये जो टर्म है N2 by V वो हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सो पाई इज इक्वल टू CRT where C is molar concentration. Okay, at value of R it will be 0.082 atmosphere liter mole inverse Kelvin inverse, or if it is taken in term of bar then 0.08331 bar liter mole inverse Kelvin inverse. ओके, चलिए अब थोड़े बहुत टर्म्स हैं वो हम समझ लेते हैं. एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सो व्हाट आर दीज टर्म्स? ओके, हाइपरटोनिक, चलिए उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. से वी सेपरेटेड टू सॉल्यूशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बोथ हैव आइडेंटिकल वॉल्यूम. Say volume at both side is 1 liter. Okay, but this solution contain say 24 gram urea and this solution contain 60 gram urea. Okay, so we can say this portion is 1 and this side is 2, then C1 molar is
लेस देन C2 मोलर। ओके, तो सॉल्यूशन 1 है वो डाइल्यूट है कंपेयर टू सॉल्यूशन 2 से। ओके, तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस फ्लो कहाँ से कहाँ होगा कि वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। मतलब वो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की तरफ जाएंगे, दैट इज सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये समझना बहुत ही जरूरी है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कम होगी वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली 60 ग्राम यूरिया कंटेनिंग सॉल्यूशन में कम है और 24 ग्राम यूरिया कंटेनिंग सॉल्यूशन में ज़्यादा है। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 इज नोन एज हाइपरटोनिक ऑफ सॉल्यूशन 2। ओके, और सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ये जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। सो हाइपर दैट इज मोर solute, that is greater concentration, and hypotonic that is less concentration of solute। ओके, अब जब ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा तब क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे, तब ये दोनों सॉल्यूशन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन अचीव करेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम हाइपर सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली हाइपो से हाइपर पे जाएंगे। अब टू व्हाट एक्सटेंट? टिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। तब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तब ये दोनों सॉल्यूशन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, दे आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अनदर वर्ड इज isoosmotic solution. So isoosmotic solutions are those solution whose osmotic pressure are equal. Okay, अब जो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैं वो आइसोटोनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जब खत्म करेंगे हम want of factor and degree of dissociation and association। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं want of factor। सो टेक केयर एंड गुड बाय।